ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ سے کہا تھا کارڈ نمبر، آپ نے کارڈ دیا. اچھا اچھا چلو ٹھیک میں ہے کوئی بتائیے. چیز اٹھانا چاہ رہا تھا، وہ ملی نہیں. میں کہہ رہا تھا ہلو ہلو بھائی اپو بھائی. ہاں عمران بھائی بتائیے. میں نے آپ سے کہا، آپ نے کہا ہمارے دو اصول ہیں، قرآن اور حدیث. آپ قرآن حدیث کی روشنی میں اللہ اکبر سے لے کے اور سلام پھیرنے تک پورا نماز کا طریقہ قرآن حدیث سے ثابت کر دیجیے گا. میں اپنا ہاتھ آپ کا ہاتھ دے دوں گا. اگر آپ اپنے دعوے میں سچے ثابت ہوگا تو نہیں وہ تو بات ٹھیک ہے، لیکن بھائی یہ پہلے آپ قبول کیجئے کہ آپ آستین کے سانپ ہیں اور دیوبند والے آستین کے سانپ ہوتے ہیں. دیکھیے مجھے کہ دوسرے کو مطلب نہیں ہے. میں آپ کو آستین کا صاحب بتانے لگوں، مجھے میں کسی کو نہیں بتاتا. تو ہمیں ثابت کر دیجیے نا. اگر میں آستین کا سانپ ہوں تو میرے کو میرے بھائی آپ کون دیجیے. دیوبند والے اپنے اصول کے پابند ہیں. دیوبند والے اپنے اصول کے پابند ہیں. دیوبند کا کوئی اصول ہی نہیں ہے. بے اصول ہیں، جاہل ہیں، کذاب ہیں، مکار ہیں، جھوٹے ہیں، فریبی ہیں. دیکھیے آپ دیوبند والے اپنے اصول کے پابند ہیں، قرآن کے حدیث کے. دیوبند والے آستین کے صاف ہیں، بھائی خالی دماغ ہیں دیوبند والے. یہ میں نے آپ کو اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہا تھا. ارے بھائی آپ جب اپنے دو اصول بتا رہا ہوں کہ قرآن حدیث آیت اللہ وآیت رسول، تو آپ اس عمل کو جو میں کہہ رہا ہوں تو آپ کو ہمارے اصول سے اتنی جلن کیوں ہے؟ کیوں جلتے ہیں اللہ اور اللہ کے نبی سے؟ اس لیے تو آستین کا صاحب آپ کو بولنا ہے. جلتے تو آپ ہو، ہم نہیں، اسی لیے آپ کو آستین کا صاحب کہتے ہیں کہ آپ آستین کے صاحب ہیں. آپ اللہ اور اللہ کے نبی کے نام سے اتنا جلتے ہیں، اتنا آپ کو میرے بھائی جلن ہے، کٹن ہے، مرن ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی سے اتنی نفرت. استغفر اللہ. آپ یہ کیسے مان والے ہیں آپ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ درود پڑھتے ہیں؟ ارے بھائی آپ آستین کے صاحب ہیں، یہ میں 100 بار آپ کو میرے بھائی بتا دوں گا، کیونکہ آپ نے اس دن رات کو مجھ سے کہا تھا کہ جو مکمل نماز ہے وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے. معاذ اللہ کسی کافر کی بھی اتنی حیثیت نہیں ہے کہ وہ یہ الزام لگا دے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں وہ ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے. اور آپ ماں کے پیٹ سے دیوبندی بن کے پیدا ہوئے ہیں اور آپ نے اتنا بڑا بہتان لگا دیا. ارے میں جو کہہ رہا ہوں نہیں، آپ نے کتنی آیتیں پڑھی ہیں، کتنی حدیثیں پڑھی ہیں جو آپ نے میرے بھائی یہ دعویٰ ٹھوک دیا کہ جو مکمل نماز ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں. کتنی پڑھی ہیں آپ نے؟ بالکل نہیں ہے. کتنی پڑھی؟ وہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. مکمل نماز کا طریقہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے. معاذ اللہ یہی تو میرے بھائی کفر ہے. آپ نے انکار کر دیا. جو میرے بھائی عبادات ہے، نماز ایک فریضہ ہے، اگر وہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے تو کیا بعد میں آپ کے امام نے آ کے ثابت کیا؟ معاذ اللہ. بتاؤ کلمہ پڑھتے ہیں ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں. ہاں تو پڑھتے ہی ہیں. اب آپ کا نہیں پتا، آپ پتہ نہیں اشرف بخاری کا پڑھتے ہوں گے. ارے آپ پڑھتے ہو نہیں؟ ہم تو پڑھتے ہی ہیں، تبھی تو ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ ہماری ہر ایک چیز الحمدللہ قرآن حدیث سے ثابت ہے. ارے زبان جو آدمی اگلی بات مت کرو. مجھے بتاؤ کہ قرآن سے حدیث سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ثابت ہے کلمہ پڑھنا؟ آپ ثابت کر سکتے ہو؟ یہی امید کی جا سکتی ہے دیوبندیوں سے. دیوبندی آستین کا صاحب ہوتا ہے، اسی لیے تو میں نے کہا دیوبندیوں کو کچل دینا چاہیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ کلمہ قرآن سے حدیث سے ثابت ہے. ثابت کر سکتے ہو آپ؟ تو وہی تو کہہ رہے ہیں میرے بھائی، دیوبندی ایک ایسا آستین کا سانپ ہے جس کو جتنی جلدی ہو سکے کچل دینا چاہیے، تاکہ وہ جو اسلام کی جو میرے بھائی بنیاد ہے اس کے اوپر شک نہ پیدا کرے. تو پھر آپ قرآن سے اور حدیث سے دو اصول سے ثابت کر دو کہ اگر آپ کو ہمارے دو اصول سے اتنی نفرت کیوں ہے، اتنی چڑ کیوں ہے؟ آپ کا اتنا گھٹیا اصول ہے کہ امام کا قول امام کی رائے. آپ کا تو ایک ہی اصول ہے امام کی رائے امام کا قول. اتنا گھٹیا اصول تو وہ آپ کے نزدیک سب سے صحیح ہے، اور ہمارا اتنا اچھا اصول ہے بھائی قرآن حدیث، تو آپ کی چھاتی پہ سانپ لوٹتے ہیں. اسی لیے میں کہتا ہوں دیوبندی آستین کا سانپ ہے بڑے بھائی، آپ مانو اس چیز کو. میں نے آپ سے سوال کیا ہے کہ قرآن حدیث سے نماز کا مکمل طریقہ ثابت کر دو کہ اگر نماز میں ثابت کر دیں گے، لیکن آپ پہلے یہ قبول کر لیجئے کہ دیوبندی آستین کا سانپ ہے. تو میں آپ کو جو میرے بھائی ابھی آپ نے جو یہ الزام لگایا نا کہ جو کلمہ توحید ہے یہ ثابت نہیں ہے،
मैं उसको दलील आपको दे देता हूँ। क्या? अरे भाई हम साबित करेंगे ना। अगर साबित नहीं करा तुमने कलमा कुरान हदीस से पूरा कलमा ला इलाहा अगर इल्लल्लाह हमने साबित ना किया तो हम आस्तीन के साफ हो जाएंगे, और अगर साबित करो, पढ़ के सुनाओ कौन सी हदीस का हवाला है, पूरी हदीस पढ़ के सुनाओ। हाँ हम तो जैसे आपके अब्बा जान के नौकर हैं कि आपने जब बोल दिया हम आपको मतलब फटाफट पढ़ के सुना देंगे। पहले आप कबूल कीजिए कि हाँ मैं आस्तीन का साफ हूँ। कब बताओगे? भाई जब आप अपनी जबान से ये इकरार कर लेंगे कि हाँ अफ्फू भाई मैं इमरान देवबंदी हूँ, मैं आस्तीन का साफ हूँ, तो मैं आपको सब मेरे मैं इमरान देवबंदी हूँ, पक्का हनफी सुन्नी हूँ और गैर मुखलिस आस्तीन के साफ है, इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह के रसूल के दुश्मन है और इस्लाम में यहूदियों की तरह बिगाड़ पैदा करते हैं। ये गैर मुखलिस जो अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, बल्कि मैं अहले खबीस कहता हूँ। तो वही तो मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, आप अशरफ अली थानवी साहब को जूतों से मारिए, क्योंकि उन्होंने अपनी मेरे भाई कलम से पहले लिख दिया है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह वो गैर मुकल्लिद थे। तो आपने कहा कि जो गैर मुकल्लिद हैं यहूदी हैं, तो यानी कि आपने अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को माज़अल्लाह इस्लाम से बाहर कर दिया। तो आप अपने भाई अकाबिरों को खूब जूते मेरे भाई भिगो भिगो के मारिए, तुम कुरान से साबित कर दो कि नमाज में सजदा सहू वाजिब है, हदीस से साबित कर दो कि अगर सजदा सहू हो गया तो वाजिब है। भाई आप अपने इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह को इमाम साबित कर दो हदीस से। चलो यार ये बात नहीं, ये बात में मतलब ये कौन सी बात है, मतलब तुम सब कुछ मुझे साबित करवा लो, हम जब कुछ पूछेंगे तो अजीब आदमी हो। वाह रे वाह। अरे भाई हम तो इमाम देवबंद वाले आस्तीन के साफ हैं, देवबंद वाले। जिन जाहिलों को ये नहीं मालूम है कि जो ये फर्ज होता है, वाजिब होता है, सुन्नत होता है, मकरू होता है, मुबाह होता है, ये एक मेरे भाई इस्तिलाह होती है, इस्तिलाहात। अब ये जाहिल लोगों को इस्तिलाहात नहीं पता है तो क्या करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं फ्री में आपको दिन सिखाऊंगा, फ्री में, एक पैसा आपसे नहीं लूंगा, कोई फीस नहीं लूंगा। आप मेरे पास इलाहाबाद आओ, मैं आपको सारा दिन सिखाता हूँ। आपके देवबंद आलिमों ने खाली आपको मेरे भैया इस्लाम पे उंगली उठाने की तालीम दी है, मैं उंगली हटाने की तालीम आपको दूंगा। आपने पहले नमाज के ऊपर मेरे भाई उंगली उठाई की तालीम किसने दी तुम्हें? तुम जो इस्तिलाह की बात करते हो ये तुम कहाँ से इल्म लाए हो? भाई आपका जैसा दावा भैया वैसा हमारा भैया मुंह तोड़ जवाब। आपने दावा किया कि जो भाई जो कलमा तौहीद है ये साबित नहीं है। जब कलमा तौहीद साबित नहीं है तो क्यों पढ़ते हो जाहिल आदमी? पढ़ना बंद करो तुम। जब तुमको दलील मेरे भाई, तुमको आज तक कलमे की दलील नहीं मिली, नमाज की दलील नहीं मिली, तो तुम कर क्या रहे हो दुनिया में पैदा होके? अरे ये बताओ भाई, कुरान हदीस से सजदा सहू वाजिब कैसे हुआ? आपने वाजिब का दर्जा कैसे दिया उसको? भाई फिर भाई आपके वहाँ इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक औरत अपने बच्चे को 2.5 साल दूध पिलाएगी, ये कौन सी आयत से लेके आए? चलो साबित करो, चलो साबित करो। हमारे यहाँ फतवा है इस बात से कि औरत 2 साल दूध पिलाए, इससे ऊपर का फतवा नहीं है। और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की तुमने कॉल को क्यों छोड़ा? तुमने अपने इमाम के कॉल के ऊपर क्यों नहीं फतवा दिया? जब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक अगर कोई माँ है वो अपने बच्चे को 2.5 साल दूध पिलाएगी, तो फतवा तुमने 2 साल पे कैसे दे दिया? जाहिली किसके मुकल्लिद हो? तुम किसके मुकल्लिद हो? तुम इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के मुकल्लिद हो या बाद वालों के मुकल्लिद हो? फतवा 2 साल जाहिल साहब बताइए आप किसके मुकल्लिद हैं? फतवा 2 साल का ही है भाई। कहाँ लिखा है? फतवा 2 साल का ही है। दोनों मसाल उठा दे ना, तुम अंधे हो, तुम तो अपने मतलब की बात देखो। भैया हिदाया में आपकी लिखा हुआ है कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के नजदीक औरत बच्चे को 2.5 साल दूध पिलाएगी। दूध पिलाने की मुद्दत 2.5 साल है। तुमको अपने इमाम का नहीं पता है, तुम क्या अहले हदीसों से बात करते हो? भाई मैं फिर कह रहा हूँ, तुम्हारा उसूल सिर्फ एक है, इमाम का कॉल, और अगर अपने इमाम के कॉल को छोड़ा तो तुम मेरे भैया हनफियत से खारिज हो जाओगे। तो हनफियत से ना खारिज हो। अरे 2.5 साल का कॉल उसके लिए है जो बच्चा कमजोर हो, जिसे जरूरत हो और दूध की, तो उसके लिए इजाजत है।
کہ وہ 2.5 سال تک اس के पास दूध पिला सकती है, ये फतवा है. कोई बच्चा कमजोर हो तो 2.5 साल पिला देगी, तो अल्लाह ताला को नहीं मालूम था बच्चा कमजोर होता है? सही हो. नहीं, हमें मालूम है देवबंदियों की अम्मा मेरे भाई जितने बच्चे पैदा करती है सब कमजोर पैदा करती है, तभी तो सब सारे 2.5 साल दूध पीते हैं. इस सारे से सारे देवबंदी की औलादे की कमजोर पैदा होती हैं. अरे खाया पिया करो, अपनी अम्मा बहनों से कहा करो कि जब मेरे भाई वो अपना भाई पेट से हो, हमल से हो, तो थोड़ा खाया पिया करे ना. क्यों कमजोर बच्चा पैदा करती हैं? हाँ तुम्हारा कहाँ डालो. अरे फतवा 2 साल का ही है, 2.5 साल पर वो फतवा मेरे भाई मतलब जो गिरगिट होता है वो भी तुम लोग से अच्छा होता होगा, उसको भी टाइम लगता होगा नाम बदलने में. तुम तो मेरे भैया जो गिरगिट है उसको पीछे कर दिया. अभी कहा कि हाँ 2.5 साल का फतवा इसलिए कि अगर बच्चा कमजोर हो. अब जब मैंने तुम्हें कमजोर बच्चा साबित कर दिया तो तुम कह रहे हो नहीं 2 साल है. एक जगह वजाहत के साथ ये बात फतवा है. तुम्हें 1500 के पैसे मिल जाएगी. कहाँ पर मैं बता दूंगा भाई. जो आपने कलमा तौहीद की जो मेरे भाई दलील पूछी थी उसका हवाला याद कर लीजिए. आपके देवबंद वालों ने भी आज तक आपको जो मेरे भाई कलमा है उसकी दलील आज तक नहीं दी होगी, वो हम आपको दिए दे रहे हैं. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मेरे भाई तमाम दुनिया जान जाएगी कि जो देवबंदी होता है वो आस्तीन का सांप होता है. क्यों? क्योंकि जो किसी काफिर की औकात नहीं है कि कलमे के ऊपर उंगली उठा दे, नमाज पे उंगली उठा दे. और ये देवबंदी खाली दिमाग हैं जो कमजोर माँ के कमजोर औलादे हैं. ठीक है, वो ये कहते हैं कि जो मेरे भाई कलमा है वो कुरान हदीस से साबित नहीं है, जो नमाज मुकम्मल है वो नहीं साबित है कुरान हदीस से. तो मेरी ये नहीं समझ में आ रहा है क्या माशाअल्लाह हमारे नबी हमको आधा दूरा दीन दे के चले गए, बाद में तुम्हारे जैसे जाहिलों ने आके दीन को मेरे भाई कंप्लीट किया है. अबे कितने लोग बोल रहे हैं, पहले एक लोग बोलो क्या हुआ मेरे भाई. आग लग गई तन बदन में सच्चाई सुन के. अरे मैंने तुमसे कहा कि कुरान. अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इस्लाम की जो बुनियाद है वो भाई 5 चीजों पर हैं. पहला क्या है कि इस चीज की शहादत देना, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और उसके रसूल हैं. और उसके बाद है मेरे भाई नमाज कायम करना, उसके बाद है भाई ज़कात अदा करना, उसके बाद है मेरे भाई हज करना, और उसके बाद है रमजान के रोजे रखना. और इसका हवाला सुन लो क्योंकि अहले हदीस जो भी बात करता है ना वो 2 उसूलों से करता है, कुरान हदीस. ठीक, तो हदीस का हवाला सुनो कान में सांडे का तेल डाल के. सही अल बुखारी किताबुल ईमान हदीस नंबर 8. ठीक है, तो इसमें आ गया है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं. अगर हमने इस मेरे भाई जुमले को शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो तेरे को दलील कहाँ से नहीं मिली जाहिली मुतलक. अब बोलना क्या हुआ, साफ सूंगी आस्तीन के साथ. तुम बोलते रहो, पहले मैं तुम्हारे सुनो, बोलते रहो तुम. और सुनो, तुमने जो कहा है ना कि जो भाई वो नमाज है मुकम्मल ये साबित नहीं है कुरान सही हदीस से, तो सुन लो. तकबीर तहरीमा से लेके सलाम फेरने तक एक एक अरकान की दलील अल्लाह के नबी की हदीस से देने जा रहा हूँ. और बीच में अगर तुम्हारे आस्तीन का सांप जागा तो कसम अल्लाह रब्बुल इज्जत की खा के कह रहा हूँ, तुम्हारे अशरफ अली थानवी को और तुम्हारे मेरे भाई जितने भी देवबंद के अकाबिर हैं, अगर उनको नंगा नाचना मैंने करवा दिया ना तो बेटा मेरा नाम भी अफ्फू खान नहीं. बीच में भौंकना मत. अफ्फू खान भैया अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते हुए देखते हो. ये हदीस आती है सही अल बुखारी और उसका हदीस नंबर 631. ठीक है अप्पू भैया. नहीं, अब हम रुकेंगे नहीं, अब हम तुमको साबित करेंगे. तुम आस्तीन के साथ कुचल देंगे दलील दे देके. हाँ अनीस अहमद, 1 मिनट मेरी सुन ले, 1 मिनट. अनीस अहमद बोल रहा हूँ. अच्छा अनीस भाई. हाँ भाई सब खैरियत है. हाँ आप साबित करेंगे और जे उस पर यस करेंगे. ये भाई ये कभी नहीं करेगा यस.
क्योंकि ये कज़ाब है, इसके अंदर मेरे भाई मुनाफिकत भरी हुई है। अनीस भाई सुनिए मेरी बात पहले। आप अपने दिल पे हाथ रख के मेरे भाई सोचिए कि इसका इल्जाम कितना बड़ा। ये कह रहा है जो हमारा जो कलमा है, ये हमारा कलमा साबित नहीं है कुरान हदीस से। जो नमाज मेरे भाई जो इबादत है, जो हमारे अल्लाह के नबी की आंखों की भाई ठंडक है, वो ये कह रहा है कि नमाज साबित नहीं है कुरान हदीस से। अरे जाहिल को ये कोई पूछे कि अगर मेरे भाई नमाज मेरे भाई कुरान हदीस से साबित नहीं है मुकम्मल, तो क्या हमारे अल्लाह के नबी और सहाबा इकराम क्या आधी अधूरी नमाज पढ़ के चले गए दुनिया से? बाद में इसके इमाम ने आके उसको पूरा किया है। ये आस्तीन का सांप है। मैं जब इससे बात करता हूँ, ये इसी मेरे भाई सवाल को बना के करता है। ये कहता है हाँ वो वाजिब कहाँ लिखा हुआ है, फर्ज कहाँ लिखा है, सुन्नत कहाँ लिखा है, मुस्तहब कहाँ लिखा है। इसको मेरे भाई जो इस्तिलाहात होती हैं, इस्तिलाहात का इसको इल्म नहीं है। अरे इस्तिलाहात किसके लिए आपने इस्तिलाहात कहाँ से लिए, कहाँ से? अबे कुरान हदीस में आया हुआ है। अल्लाह सुब्हानो व तआला ने कुरान में फरमाया सूरह नमल में कि जिस चीज का तुमको इल्म ना हो अहले जिक्र से पूछ लो। तो जो अहले जिक्र थे उन्होंने बता दिया कि जो अल्लाह का जो हुक्म होता है उसको बोलते हैं फर्ज, जो अल्लाह के नबी का तरीका होता है उसको बोलते हैं सुन्नत, जो मेरे भाई नमाज में हम कर भी सकते हैं छोड़ भी सकते हैं उसको बोलते हैं ऑप्शनल, यानी कि अरबी में बोलते हैं मुबाह। ठीक। और जो मेरे भाई अफजल काम होता है, बेहतरीन काम होता है, बेहतर काम होता है, उसको इस्तिलाह में बोलते हैं, आम तौर पर उसको बोलते हैं मुस्तहब। और जो काम करने से मेरे भाई कराहत आए उसको बोलते हैं मकरू। ये सब मेरे भाई इस्तिलाहात हैं जो हमारे भाई सलफ़ुस सालिहीन ने मेरे भाई हमको दिया है। और ये जाहिल कह रहा है कि हम इसको मानेंगे नहीं, हमको हदीस में अल्फाज चाहिए। अबे मैं तेरे बाप दादाओं को चैलेंज करता हूँ, जो लोग आस्तीन के साथ इस्लाम को मेरे भाई दस के इस दुनिया से चले गए, उन सबको जमा कर लो, अपने तमाम माबूदों को इकट्ठा कर लो, वो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते हैं। और अगर कोई एक मक्खी पैदा अगर कर ले तो उसको मेरे सामने लेके आओ, तो मैं उसको नंगा नाच कराता हूँ। तुम्हारे देवबंद के अकाबिर लोग रंडियों को तावीज देने वाले, वो आके मेरे भाई अहले सुन्नत से बात करेंगे। तुम्हारे जो अकाबिर हैं वो तो मेरे भाई रंडी होती थी, वैश्या होती थी, जब उनकी बेटियां मतलब बीमार होती थी तो वो जाती थी देवबंद के अकाबिरों के पास, वो उनसे तावीजें लेती थी, फिर तावीज पहन के वो ठीक भी हो जाती थी। उसके बाद वापस अपना धंधा करती थी और धंधे की कमाई से जो मेरे भाई जो तोहफा होता था, मिठाई होती थी, उसको लेके जाती थी देवबंद के अकाबिरों के पास। तो तुम्हारे देवबंद के जो अकाबिर हैं उन्होंने आज तक मेरे भाई कुरान हदीस खोल के तो देखा नहीं है। उन्होंने मेरे भाई रंडियों की, वैश्या की मेरे भाई कमाई की मिठाई खाई है, तो वो कहाँ से हक बोलेंगे? तुम लोग आस्तीन के साथ हो, तुम्हें कुचलने के लिए मैं आया हूँ, कुचल दूंगा सबको अकेले इंशाअल्लाह। अप्पू भाई जी बताइए। आप साबित करिए कुरान हदीस से, इमरान भाई कह रहे हैं नमाज को। बस भाई हम तो साबित कर देंगे, लेकिन फिर भी चीज, मैं इनके अब्बा जान का नौकर नहीं हूँ और ना ही मुझे अशरफ अली थानवी की तरह 600 रुपए अंग्रेजों से मेरे भाई तनख्वाह मिलती है। ठीक भाई, मैं कोई नौकर तो नहीं, लेकिन मैं सिर्फ इस जाहिल को कुचलने के लिए मैं इसको साबित करने वाला हूँ। और इसको बोल दीजिएगा बीच में अगर इसने भौंका तो जो इसके आस्तीन के अंदर का जो भाई सांप है ना, उसको मैं काट के फेंक दूंगा कि बीच में बोले ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस तरह नमाज पढ़ो जैसे मुझे पढ़ते हुए देखते हो। ये हदीस आती है बुखारी शरीफ की और हदीस नंबर 600, भाई इसका हदीस नंबर है 631। ठीक। अब सबसे पहले आती है, ठीक है, जब भी इंसान कोई नमाज पढ़ता है तो नमाज से पहले करता है नियत। और नियत क्या होती है? जुबान से नियत करना होता है बिदअत। और जो मेरे भाई नियत होती है वो होती है दिल का इरादा। ये मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 1। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तमाम अमाल का जो भी दारुमदार है भाई वो नियत के ऊपर है। ठीक। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे नियत, और नियत करने के बाद हम लोग मेरे भाई कयाम करेंगे। और कयाम के लिए सबसे पहले हमें खाना काबा की तरफ अपना रुख करके खड़े होना है। इसकी दलील सुन लीजिए कान में सांडे का तेल डाल के, इब्ने माजा उसकी हदीस नंबर 803।
अगर जमात के साथ नमाज पढ़ना है तो कंधे से कंधा और टखनों से टखने को मिला के नमाज पढ़ेंगे। इसकी दलील मेरे भाई कान में सांडे का तेल डाल के फिर से सुन लीजिए। अबू दाऊद, इसका हदीस नंबर 662। उसके बाद हम कहेंगे तकबीर, अल्लाहु अकबर। यह आता है इब्ने माजा की हदीस नंबर 803। उसके बाद हम हाथों की उंगलियां को फैलाकर रफादैन करेंगे। इसकी दलील आती है अबू दाऊद की हदीस नंबर 753। उसके बाद हम दोनों हाथों को जब हम उठाएंगे तो रफादैन कांधों तक भी हम उठा सकते हैं। कांधों तक जब हम उठाएंगे तो उसकी मेरी भाई जो दलील है वो है सहीह बुखारी, उसकी हदीस नंबर 735। और हम कानों तक भी उठा सकते हैं। कानों तक जो मेरे भाई जो हम अपने दोनों हाथों को कानों तक जब उठाएंगे तो इसका हवाला है सहीह मुस्लिम और हदीस नंबर 865। उसके बाद फिर दायां हाथ बाएं हाथ पर सीने पर रखेंगे। ठीक है, जहाँ पे इनकी अम्मी जान रखती हैं सीने पे हाथ, कि लोग कहते हैं ना सीने पे हाथ बांधने की हदीस बताओ, हदीस बताओ, तो इनकी अम्मी जान जहाँ सीने पे हाथ बांधती हैं वहीं पे हम अहले सुन्नत भी हाथ बांधते हैं। हमारे अल्लाह के नबी ने सीने पे हाथ बांधा है। उसका हवाला है मुस्नद अहमद, उसकी हदीस नंबर 22313। ठीक है, उसके बाद दायां हाथ बाईं जिरा पर हम रखेंगे। इसका हवाला है सहीह बुखारी हदीस नंबर 740 और मुअत्ता इमाम मालिक हदीस नंबर 377। अब ये मेरे भाई जो अरबी में बोलते हैं जिरा, इसको क्या बोलते हैं? कोहनी के सिरे से दरमियानी उंगली के सिरे तक का जो मेरे भाई एरिया होता है, हिस्सा होता है, उसको मेरे भाई आमतौर पे बोलते हैं जिरा। और इसका हवाला सुन लीजिए, अरबी की जो मेरे भाई जो होती है लुगत अल कामूस, उसका पेज नंबर 568। ठीक है, अरे कहाँ भाग गए सब लोग भैया? क्या हुआ, मैयत हो गई क्या इमरान भाई की? सुन रहा है, तुम्हारी बात सुन रहा है। आपने मना कर दिया ना बोलने को। उसके बाद मेरे भाई हम लोग जब भी कोई भी मेरे भाई नमाज पढ़ते हैं तो उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं सना, और सना को हमें आहिस्ता आवाज से कहना है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने जोर से सना पढ़ने की तालीम हमको नहीं दी है। अल्लाह के नबी आहिस्ता आवाज में सना पढ़ते थे, यानी मतलब जो आम तौर पर हम लोग पढ़ते नहीं सुभानक अल्लाहुम्मा, तो ये जो सना है इसका हवाला है सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 892 और अबू दाऊद की हदीस नंबर 775। उसके बाद मेरे भाई हम लोग जो मेरे भाई सूरह फातिहा है उसको पढ़ने से पहले हम लोग कहेंगे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। ये हमें कहना है। ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे भाई कुरान में आता है, सूरा नंबर 16 आयत नंबर 98 में, और मेरे भाई बुखारी शरीफ की हदीस है 6115। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक, इसका हवाला है मेरे भाई सुनन नसाई हदीस नंबर 906। उसके बाद हम लोग सूरह फातिहा पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया और उसकी नमाजी नहीं होती जो नमाज में सूरह फातिहा ना पढ़े। इसका हवाला है सहीह बुखारी हदीस नंबर 756। और अगर मेरे भाई जहरी यानी कि ऊंची आवाज से जो हम लोग मेरे भाई किरात करते हैं नमाज में, उसमें आमीन भी हमको भाई जोर से कहना है, जहरी कहना है। इसका हवाला है अबू दाऊद हदीस नंबर 932 933। उसके बाद मेरे भाई जो मतलब हम लोग धीमी नमाज पढ़ते हैं सिर्री, उसमें मेरे भाई जब हम पढ़ेंगे तो धीमे से आमीन कहेंगे, आहिस्ता से आमीन। इसका हवाला है इसका भाई जो हवाला है कान में सांडे का तेल डाल के एक बार सुन लीजिए। ठीक है, मुस्नद अहमद उसकी हदीस नंबर 19048। और उसके बाद सूरह फातिहा के बाद हम कोई और सूरत हमको पढ़ना है, और उस सूरत को पढ़ने से पहले हमको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। इसका हवाला है सहीह मुस्लिम हदीस नंबर 894। उसके बाद पहली 2 रकातों में सूरह फातिहा के साथ कोई और सूरत या जो कुरान का हिस्सा आपको आसान हो
وہ پڑھنا ہے. اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 762. اور آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے اور کوئی بھی سورت ہم کو نہیں پڑھنا ہے, چاہے تو پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کا حوالہ ہے صحیح المسلم, اس کا حدیث نمبر 1013 1014. اب آتے ہیں میرے بھائی رکوع کے اوپر. جب ہم میرے بھائی رکوع جب ہم کریں گے تو تکبیر کہیں گے اللہ اکبر. اس کا حوالہ ہے میرے بھائی صحیح البخاری اور حدیث نمبر 789. اور دونوں ہاتھوں کو کاندھوں تک اٹھائیں گے, یعنی کہ میرے بھائی یہ آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 736. کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں. کانوں تک میرے بھائی اپنے ہاتھوں کو جو ہم لوگ اٹھاتے ہیں رفع الدین کرتے ہیں, اس کا حوالہ ہے میرے بھائی صحیح مسلم حدیث نمبر 391. اور اپنے ہاتھوں سے گھٹنوں کو ہم کو مضبوطی سے ایک دم بھائی پکڑنا ہے. اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 828. اور اپنی انگلیوں کو کھول دینا ہے. اس کا میرے بھائی جو حوالہ ہے وہ ہے ابو داؤد حدیث نمبر 731. سر نہ تو پیٹھ سے اونچا ہو نہ نیچا ہو, بلکہ پیٹھ کی سیدھ میں بالکل برابر ہم کو کرنا ہے. اس کا حوالہ ہے ابو داؤد حدیث نمبر 730. پھر دونوں ہاتھوں کو کمان کی ڈوری کی طرح بالکل بھائی تان کر دونوں ہاتھوں کو اپنے جو پہلو ہیں بغلوں ہیں ان سے دور رکھنا ہے. اس کا حوالہ ہے ابو داؤد حدیث نمبر 734. رکوع میں سبحان ربی العظیم ہم کو پڑھنا ہے بھائی. اس کا حوالہ ہے صحیح المسلم حدیث نمبر 772. اور اس دعا کو کم سے کم 3 بار پڑھنا ہے. سبحان ربی اعلیٰ کو اور عظیم کو یہ ہمیں 3 بار پڑھنا ہے. اس کا حوالہ ہے مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 2571. اب آتے ہیں میرے بھائی قوما کا جو میرے بھائی طریقہ ثابت ہے اس پہ آتے ہیں. جب ہم رکوع سے سر اٹھانے کے بعد رفع الدین کرتے ہیں اور سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد بھائی ہم کو کہنا ہے. یہ اس کی جو دلیل ہے وہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 735. ربنا لک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, اس کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 799. اب آتے ہیں بھائی سجدے پہ. پھر تکبیر کہتے ہوئے ہم کو سجدے کے لیے بھائی جھکنا ہے. اس کا میرے بھائی حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 803. پہلے سجدے کو جاتے وقت بھائی ہم کو رفع دین نہیں کرنا ہے. اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 738. اور ہمیں 7 ہڈیوں پر سجدہ کرنا ہے. اب 7 ہڈی میں بھائی کیا کیا گئے؟ پیشانی, ناک, 2 ہاتھ, 2 گھٹنے اور 2 پیر. ہمیں 7 ہڈیوں پر اللہ کے نبی نے سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے. یہ آتا ہے میرے بھائی صحیح البخاری اور اس کی حدیث نمبر 812. سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے زمین پر رکھنا ہے. یہ آتا ہے ابو داؤد حدیث نمبر 840 اور صحیح ابن خزیمہ حدیث نمبر 627. اب آتے ہیں سجدے میں ناک اور پیشانی زمین پر خوب جما کر ہم کو رکھنا ہے اور اپنے بازوؤں کو اپنے جو پہلو ہیں بغلوں سے دور ان کو رکھنا ہے اور دونوں ہتھیلیاں کاندھوں کے برابر زمین پر رکھنا ہے. اس کا حوالہ ہے ابو داؤد حدیث نمبر 734. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتے ہیں بھائی جو سر ہے, سر کو دونوں ہاتھوں کے بیچ رکھنا ہے. ابو داؤد حدیث نمبر 726. اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں اور اپنے ہاتھوں کو اپنے کاندھوں کے برابر ہم کو رکھنا ہے. یہ آتا ہے ابو داؤد اس کی حدیث نمبر 734. اور اپنے کانوں سے آگے بھائی ہم کو نہیں لے کے جانا ہے. اس کا حوالہ ہے سنن نسائی حدیث نمبر 890.
اور ہاتھوں کی انگلیوں کو بالکل آرام سے نارمل جو میرے بھائی پوزیشن ہوتی ہے اس میں رکھنا ہے۔ اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 828۔ اور سجدے میں ہاتھ زمین پر نہ تو میرے بھائی اس کو بچھانا ہے اور نہ بہت سمیٹنا ہے، اور پیروں کی انگلیوں کو ہم کو قبلہ رخ کرنا ہے۔ یہ آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 828۔ سجدے میں اعتدال کرنا اور اپنے ہاتھوں کو کتوں کی طرح ہم کو نہیں بچھانا ہے۔ یہ آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 822۔ اور دیوبندی کی جو عورتیں ہیں وہ سجدے میں اپنے ہاتھ کو کتوں کی طرح ایک دم میرے بھائی بچھا دیتی ہیں، جبکہ اللہ کے نبی نے اس سے منع کیا ہے۔ اب آتے ہیں سجدے میں دونوں قدم کھڑے رکھنا ہے، یعنی کہ اس کا حوالہ ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 486۔ اور پیروں کی انگلیوں کو ہم کو قبلہ رخ ہم کو موڑ کے رکھنا ہے، اس کا حوالہ ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 828۔ اب آتے ہیں جلسہ۔ بھائی پھر تکبیر کہہ کر سجدے سے ہم کو سر اٹھانا ہے۔ یہ آتا ہے بھائی یہ بخاری حدیث نمبر 789۔ پہلے سجدے سے سر اٹھاتے وقت ہم کو جو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں رفع الدین ہم کو نہیں کرنا ہے۔ یہ آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 738۔ دونوں سجدوں کے ہم کو درمیان تھوڑی دیر بیٹھنا ہے۔ یہ آتا ہے میرے بھائی صحیح البخاری حدیث نمبر 818 اور 821۔ اور دونوں سجدوں کے بیچ ایک میرے بھائی دعا بھی ثابت ہے جو کوئی دیوبندی نہیں پڑھتا ہے، وہ دعا ہے رب اغفر لی رب اغفر لی، اس کو 2 بار پڑھنا ہے۔ یہ آتا ہے ابو داؤد حدیث نمبر 874 میں۔ اور میرے بھائی تکبیر کہہ کے دوسرا سجدہ کرنا ہے، دوسرے اس طریقے سے ہمیں پوری نماز کمپلیٹ کرنی ہے۔ اب آتے ہیں بھائی تشہد میں۔ دوسری رکعت میں دوسرے سجدے کے بعد بیٹھ جائیں، اس کا حوالہ ہے بھائی صحیح المسلم حدیث نمبر 579۔ اس کے بعد ہمیں اپنی انگلی کو مطلب جو باقی کی انگلی ہیں بیچ والی ان انگلی سے ملانا ہے، اور جو شہادت کی انگلی ہے جس کو عربی میں بولتے ہیں شبابہ، اس کی انگلی سے اشارہ کرنا ہے۔ یہ آتا ہے میرے بھائی صحیح المسلم حدیث نمبر 579۔ اور ہم کو اس کے ساتھ ہی انگلی کو حرکت دیتے ہوئے دعا کرنا ہے۔ یہ آتا ہے میرے بھائی سنن نسائی حدیث نمبر 890۔ اور جس انگلی سے ہم اشارہ کرتے ہیں اس انگلی کو ہم کو دیکھنا ہے۔ یہ آتا ہے ابو داؤد اس کی حدیث نمبر 990۔ اور شہادت کی انگلی کو تھوڑا سا جھکا دینا ہے۔ یہ آتا ہے ابو داؤد حدیث نمبر 991۔ اور ہمیں التحیات پڑھنا ہے۔ یہ آتا ہے مسند احمد حدیث نمبر 4382۔ اور اس کے بعد ہم کو پڑھنا ہے درود شریف یعنی کہ درود ابراہیم۔ یہ آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 835۔ اور اس کے بعد دائیں اور بائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے سلام پھیرنا ہے۔ یہ آتا ہے صحیح البخاری حدیث نمبر 838 میں، اور جامع ترمذی اس کی حدیث نمبر 295 میں۔ تو الحمدللہ میں نے ثابت کر دیا کہ قرآن اور حدیث سے مکمل طور پہ الحمدللہ نماز ثابت ہے۔ اب اس بریلوی دیوبندی قادیانی یہ ان کا باطل عقیدہ ہے، اپنے امام کا باطل جو مسلک ہے اس کو بچانے کا، کہ جو مکمل نماز ہے یہ قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو میں نے جتنے حوالے دیے ہیں یہ کیا کبھی کسی دیوبندی نے کبھی اٹھا کے کھول کے دیکھا بھی ہے زندگی میں؟ یا خالی آستین کا صاحب بن کے خالی الزام لگانے پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں نماز ثابت نہیں ہے قرآن حدیث سے؟ انیس بھائی ہاں سننا جی بھائی ثابت کر دیا تکبیر تحریمہ سے لے کے میرے بھائی سلام پھیرنے تک۔ آپ چپ کرو۔ اپو بھائی آپ سے پوچھا، آپ بتائیے جی۔ انہوں نے نماز کا طریقہ ثابت کرا
नमाज का तरीका? अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे यहाँ बिल्कुल सनद के साथ सारी बातें मौजूद है, और जिनकी बहुत सी उन्होंने हदीसों का हवाले लिया, जिन हदीसों के मुनकिर हैं उस ये सित्ता की किताबों में मशहूर मुतवातिर हदीस जो इमरान देवबंदी आस्तीन के साथ में कहना है कौन से हदीस के मुनकिर हैं अभी बताएं तुरंत, खाली इल्जाम न लगाएं। फिर बोले ये जल्दी बताइए कौन से हदीस के मुनकिर हैं अभी बताइए। ये बुखारी शरीफ के हवाला देते हैं। मैंने इनसे कहा अगर नमाज में सजदा सहू अगर हमने तैयार किया सूरह फातिहा पढ़ ली सजदा सहू करना पड़ेगा, तो इन्होंने कहा वाजिब है। तो ये इन्होंने हदीस में कहीं ये बात सुने आपको अगर सजदा सहू हो गया, अल्लाह रसूल ने फरमाया कि अगर एक ही सवाल पूछता रहेगा कि वाजिब कहाँ लिखा है, वाजिब कहाँ लिखा है, वाजिब कहाँ लिखा है। इमरान भाई, मुतलक मैंने कितनी बार कहा कि जो ये फर्ज है, मुस्तहब है, मकरूह है, जायज है, नाजायज है, इस्तिलाहात बोल लो जाए तो ये इस्तिलाह की दलील मांग रहा है, जबकि जो मेरे भाई इस्तिलाहात होती हैं ये खुद मेरे भाई कुरान हदीस किताबें हैं। बिना कुरान हदीस के कोई अगर इस्तिलाह बनाता है तो वो गुमराह है, जाहिल है। आप इमाम को इमाम भाई काहे के लिए कहते हैं? इमाम को इमाम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस्तिलाह है। इमाम का माना होता है लीडर, तो लीडर एक मेरे भाई इस्तिलाह है। अब अगर कल को कोई भाई ये इनसे पूछ ले कि कौन सी हदीस में आया है कि अबू हनीफा रहमुल्लाह वो इमाम है, हमको इमाम का अल्फाज दिखाओ, तो इसको कहते हैं बच्चों वाली बात करना। और ये इमरान देवबंदी एक नंबर का बच्चा है, इसको कुछ नहीं आता है। इसके झोला छाप जो रंडियों की कमाई खाने वाले देवबंद वाले हैं, उन्होंने से इतना सिखाया है कि जाके कोई तो उससे कहना वाजिब कहाँ लिखा है, सुन्नत कहाँ लिखा है, फर्ज कहाँ लिखा है। ये भाई मैं कोई अंगूठा चूसने वाला बच्चा नहीं हूँ। साइलेंट हो जाओ तो एक मिनट तो सुनो। देखिए अप्पू भाई मैं बताऊं, सुन रहे हैं अप्पू भाई? अरे हाँ सुन रहे हैं, बताइए ना। ऐसा है मसला, यहाँ इन्होंने ये कहा था नमाज को साबित करना कुरान और हदीस से, बस वो आपने करा है। अब ये वाजिब वाला और ये वाला इसमें क्यों रखे? आप ये बताइए इमरान भाई, इन्होंने जो नमाज पूरी साबित करी है कुरान हदीस से, ये सही है कि गलत है? भाई इन्होंने मेरे को रात को फोन करके कहा, इनका जो दावा था वो मैं पहले आपको बता देना चाहता हूँ। इन्होंने मुझसे फोन करके कहा, दावा बाद में बताऊंगा मैं। नहीं मैं बता रहा हूँ इनका दावा क्या है। इन्होंने जो मुझसे फोन पे रात को मेरे भाई फोन करके इन्होंने कहा कि जो भी मुकम्मल नमाज है कुरान हदीस से साबित ही नहीं है। तो मैंने कहा माज़अल्लाह ये तो कुफ्र है, आप इनकार कर रहे हैं। आप इस चीज का इकरार कर रहे हैं कि गोया कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने आधी अधूरी नमाज पढ़ के चले गए। मैंने इनसे समझाया भी कि भाई तौबा कर लीजिए। इसने कहा कि मैं तौबा नहीं करूंगा, कुरान हदीस से नमाज साबित ही नहीं है। तो ये इतना बड़ा बज्जन आदमी है, इसीलिए मैंने इससे कहा कि ये आस्तीन का सांप है, क्योंकि कोई एक आस्तीन का सांप ही होगा जो इस्लाम की जो बुनियाद है नमाज, उसमें उंगली उठाएगा। आज के दौर में किसी भाई काफिर की नॉन मुस्लिम की इतनी हैसियत नहीं है कि वो ये कह दे कि आपकी जो नमाज है भाई वो साबित नहीं कुरान हदीस से। और ये माँ पेट से देवबंदी होके इस तरीके का मेरे भाई गंदा दावा करता है कि नमाज जो है वो कुरान हदीस से साबित नहीं है। यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह की जो अब्बा जान थे, अम्मी जान थे, उन्होंने जो नमाज पढ़ी वो आधी अधूरी थी, क्योंकि इनके नजदीक जो नमाज मेरे भाई मुकम्मल की है वो इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह ने की है। यानी कि इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के आने से पहले जितने लोग नमाज पढ़ के गए हैं सबने आधी अधूरी नमाज पढ़ी है। यानी कि इमरान देवबंदी साहब के जो इमाम के माँ बाप थे उन्होंने खुद मेरे भाई आधी अधूरी नमाज पढ़ी है। कितने शर्म की बात है। अब सुन लो